जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अपनी दर पे बुलाने का और इस सेवा को देने का। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। I would not usually share what I'm going to immediately share with you now, but आज जब मैं दरबार में आई, I came after almost a month, and when I walked up to him, I looked at him and I said, इतने ग्लैमरस कपड़े पहने हैं आज आपने, बहुत अच्छे लग रहे हो. Then I looked at his स्वरूप्स and I said, थोड़े पतले लग रहे हो. And I felt him laughing at me and kind of knocking my head and saying, पागल है तू. पागल तो हूँ. Because the more I open up my awareness about him, the more he reveals himself to me. इस एक महीने में ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं थे. I would go to satsangs and he would be there, of course, because I went for a satsang. I would go to Bade Mandir, he's there. And I would just go for a high tea and someone would tell me, I'm suffering from this. And inadvertently, I would start talking about him. Someone who knew me would just walk up to me and tell me कि आप गुरुजी को मानते हो ना, what do you feel about him? What makes you think that you have to believe in him? And I would start telling why I feel he is there in my life. Inadvertently, all my conversations in the end would go to Guruji. Whether it was on the flight, a person sharing their suffering with me, and I would tell them, have you ever heard about Guruji? कितना खूबसूरत दरबार है ये. ना कोई पंडित, ना कोई पादरी नहीं, कोई मुल्ला नहीं, कुछ नहीं. ईश्वर खुद यहाँ बैठे हैं. He himself is here. Like no two fingerprints are similar. कोई भी दो spiritual journeys similar नहीं होती. None of us have the same spiritual journey. हर एक की अलग, हर एक का level अलग. और ऐसा ईश्वर जो हर एक के लिए हमारे लेवल पे उतर कर एक एक के लिए नीचे आता है. घर से हमें यहाँ लाते हैं, घर तक हमें लेके जाते हैं. और जब हम मंदिर में नहीं होते, जब हमें थोड़ा सा घबराहट होती है कि पता नहीं है या नहीं है, खुद को रिवील कर देते हैं. In some way or the other, he will remind himself. He will remind you of himself. How beautiful is it? So, I don't know, I am mesmerized by the fact that there are so many followers today who are thinking about him, who are following him, who are curious about him. And the more they are, the more followers are increasing. Day by day, every day it feels as if there are more people who want to come to him. And what would I say, how fortunate are we? कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे लिए कर रहे हैं. He is here himself for us. भगवान खुद हमारे लिए, he's making himself available to us. So I'm a little overwhelmed today, but आज का सत्संग जो है वो बेनू ढींगरा आंटी शेयर करेंगी. I would now invite her to please come and share her experiences with you. And while we were discussing a little in the hall on the backside, she also, whatever she shared also made me realize how beautiful it is and how he makes himself aware of himself to you. Jai Guruji. Jai Guruji, प्यारी संगत. Jai Guruji. Shukrana for giving me this opportunity to doing satsang again. My satsang is not too big, but wherever I come here, I just get tears in my eyes. I don't know what makes me. I'm so connected to him. Whatever satsang I want to start, पहले मैं अभी का बताती हूँ why I cried today. संजीव अंकल ने फ़ोन किया था सुबह. उन्होंने बोला आप कोई शब्द सुनना चाहोगे? And my husband and we said नहीं, जो गुरुजी की इच्छा हो, play this playlist. Then I said नहीं, सुनील आपको वो पसंद है ना, आप वो बोल दो. And he had 2 शब्द which is given to संजीव अंकल. And I said मेरे को ना राम जी का सुनना है, वो रिंकू जी का, but it's 45 minutes long. So I don't know if he'll play or not because one शब्द is 45 minutes long. So
इस चल रहने दे, ये 2 दे देते हैं, 45 मिनट्स का रहने देते हैं, इट्स टू लॉन्ग राम जी का. एंड द लास्ट शब्द गुरु जी प्लेड फॉर मी, राम राज. सी हाउ ही कनेक्ट्स विद यू एंड ही विशेस यू, आपके विशेस पूरी करते हैं. द मोमेंट ही द राम राज इज लाइक, हमने तो कहा नहीं था ना अंकल को. मैंने कहा नहीं, पर गुरु जी को तो कहा था हमने घर पे, गुरु जी तो सुन रहे थे ना. इज देयर विद अस एवरीवेयर. सो वी डोंट हैव टू कम टू टेम्पल टू टेल हिम. इवन सिटिंग होम ही लिसन टू अस, ही न्यू व्हाट वी वांटेड एंड ही प्लेड फॉर अस. उन्होंने हमारे वो प्ले किया लास्ट शब्द, एंड इट वाज द लास्ट शो स्टॉपर सॉन्ग वही था हमारा आज का. तो मेरे तो आंखों में इतने आंसू थे, मैं रोई जा रही थी, मैं गुरु जी को देखी जा रही थी. Okay, the satsang I want to share today, I have 2 satsang. First is like, everybody knows I said last time मैं देवांशी आंटी और वैभव अंकल हमें यहाँ लेके आए थे, हम लोगों को कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की. एवरी टोल्ड लास्ट सत्संग में सबको. बट गुरुजी तो मेरे घर मेरे पहले ही आ गए थे. मैंने आंटी को अपना सत्संग बताया. 2017 और 16 आई वेंट टू इंडिया, और मेरी सिस्टर इन लॉ वो फॉलो करती हैं गुरुजी को. शी गोस एंड वो बोली गुरुजी के चलोगे. मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अगली ट्रिप पे आएंगे ना, जैसे शॉर्ट ट्रिप वी वेंट फॉर 1 वीक. ऐसा मे बी नेक्स्ट ट्रिप में चलेंगे, इस टाइम टाइम नहीं है, आप तो जाते हो ना, हमारी तरफ से माथा टेक देना. शी सेड ओके. एंड जब हम वापस आ रहे थे तो उसने बोला भाभी आपके बैगेज में गुरुजी का स्वरूप रखा है, देख निकाल लेना, देख लेना. मैंने बोला ठीक है रख दो. एंड मैंने कभी वो बैगेज लाई इंडिया से. इट वॉज अबाउट 2016 और 17. वो बैगेज के पीछे जो जिपर्स होते हैं ना, द गुरुजी स्वरूप वाज देयर इन द गिफ्ट एनवलप, गिफ्ट बैग में. ओके इज देयर. ओके बैगेज खाली किया, गुरुजी का स्वरूप वहीं है, नहीं याद रहा. गुरुजी तो आगे घर में पढ़िया, मेरा स्वरूप वहीं है. ओके पढ़े. उसके बाद हम 2000 अभी फिर इंडिया गए, फिर वापस आए. गुरुजी गए और फिर वापस आए. फिर बैगेज खोला, फिर नीचे चला गया, गुरुजी वहीं है बैगेज में. 2 बार हम कैनकून गए, गुरुजी साथ ट्रैवल करके गए, साथ वापस आए, बैगेज नीचे ही है, नहीं खोला. और मैं मंदिर में जो देवांशी आंटी का मैं कहती हूँ इस कनेक्टेड, वो मेरे को पहले यहीं, फिर वो जब लेके आई थी इसी मंदिर में लेके आई थी. देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्वरूप के बारे में. तो हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, आ रहे हैं हमारे साथ. अभी हम लोग को नवंबर में फिर से उनकी मेरी सिस्टर इन लॉ के डॉटर की वेडिंग में जाना था. उसने बोला एंड इट्स लाइक 18 को हमारी फ़्लाइट थी, 17 को, 18 को हमें पहुंचना था, 19 को गुरुजी का सत्संग था. शी सेड भाभी आप सत्संग करोगे गुरुजी का आके ना, एक आपका भी रखवा दूँ. मैंने बोला नहीं यार अभी कोई सत्संग रेडी ही नहीं है, कैसे होएगा, रहने दे. तो मैंने कहा तू कर लेगी इस बार. कहती ठीक है. एंड मैंने बैगेज खोला, पैकिंग करनी है, बैगेज खोला एंड द गुरुजी स्वरूप वाज देयर. लाइक नाउ आई हैड क्राइड मोर इन माई हाउस. और मैं सिस्टर इन लॉ को फ़ोन किया मेरा सत्संग रेडी है. शी सेड कौन सा. मैंने बोला मेरी फ्रेंड जो मुझे यहाँ मंदिर में लेके आई है, गुरुजी का यही स्वरूप है मेरे पास. एंड सी आई गो टू ओक ट्री आल्सो. पर मेरे को गुरुजी ने इसी मंदिर में लेके आना था और गुरुजी का स्वरूप इसी के दर्शन कराने थे जो मेरे बैग में गुरुजी आए हुए थे. और आप मानेंगे नहीं उस दिन मैं कितना रोई हूँ, मैंने इतना रोई हूँ. मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे यही स्वरूप किया. और आप जब भी देखेंगे मैं यहाँ आती हूँ, मैं गुरुजी के सिंहासन को बहुत कम देखती हूँ. मैं गुरुजी के कनेक्शन यहीं होता है मेरा. अगर कोई मेरे को ब्लॉक कर रहा होता है, मैं उधर वीडियो में देख रही होती हूँ कि मेरा कनेक्शन गुरुजी के इसी स्वरूप से होता है. मैं वहाँ बैठी या कहाँ बैठूँ, मेरा उस स्क्रीन पे या उस स्क्रीन पे गुरुजी के स्वरूप को देख रही होती हूँ कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ. सो दिस इज़ माई फर्स्ट सत्संग कि गुरुजी कैसे आपसे कनेक्ट होते हैं. एक और सत्संग है, आंटी ने पूछा आपको लंगर में कुछ बनवाना है स्पेशल. मैंने बोला नहीं, जो गुरुजी की इच्छा हो. सेम लाइक सत्संग. और फिर ना मेरे को एकदम ध्यान आया, संडे है. देयर इज़ अ रीज़न वी डोंट ईट ब्लैक चनास ऑन संडेज. देयर इज़ अ बिग स्टोरी, आई डोंट गो इनटू दैट. पर जब गुरुजी के मंदिर में आते हैं बोलते हैं ना इंतु परंतु छोड़ दो, तो वो मैं गुरुजी के सत्संग में ज़रूर खाती हूँ. यहाँ पे आके आई ईट, जहाँ पे भी होता है खाती हूँ. पर इस बार मेरे बेटे का 21st बर्थडे था, तो ऐसे मदर ऐसे यार पूरी आंटी को फ़ोन कर दो ना कि हम लोग को काले चने नहीं बनवाने हैं, अगर वो कुछ और अगर बनवा रही हैं तो, क्योंकि कई बार हो जाता है. तो सुनील ने फ़ोन किया
और बोला तो पूर्वी आंटी ने बोला कि गुरुजी ने तो बनवाया ही नहीं है, उन्होंने तो राजमा और गोभी आलू बनवाए हैं, एंड वो मेरे बेटे की दोनों फेवरेट डिशेज़ हैं। आई वाज लाइक गुरुजी आपने इतना भी सुन लिया, ये भी। और मेरा थर्ड संग है जो मेरे को आंटी ने इंसिस्ट किया, वो जरूर मैं शेयर करूँ। एज आई सेड आई वाज फ्लाइंग टू इंडिया। 15 को मेरी नीस का फ़ोन आता है, मॉम इज़ नॉट फीलिंग वेल। आई सेड ओके टेक हर फॉर ब्लड टेस्ट, शी इज़ अ डायबिटिक यू नो। सो काफ़ी टाइम से उसकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही थी, एंड उसका 15 को वो जाते हैं और 16 को उसका रिजल्ट आता है। शी गोज़ टू डॉक्टर लेके रिपोर्ट, तो बोलते हैं ओ माय गॉड उसका थायराइड वाज टू हाई एंड हर शुगर लेवल वाज वेरी हाई। डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट कराना पड़ेगा, आई वोंट अलाउ यू टू गो होम नाउ, यू हैव टू बी एडमिट, तो आप जा ही नहीं सकते हो। एंड मेरी सिस्टर भी गुरुजी को मानती है और बोली ये सब हम टॉकिंग अबाउट 16 एंड 17, और मेरी फ़्लाइट है 17 को और एक दिन का गैप है, 19 को गुरुजी का सत्संग है। और उसने मैंने बोला, मेरी नीस ने बोला मम्मी की तो हालत बहुत ख़राब है, वी हैव टू एडमिट हर ना, उसका शुगर बहुत हाई है, थायराइड बहुत हाई है, डॉक्टर कह रहे हैं शी वोंट एबल टू गो होम, इधर से सीधा डायरेक्ट उसको एडमिट कराना है। तो मैंने बोला, अब मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ कर दो। मेरी सिस्टर ना बोली गुरुजी प्लीज़ अभी क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी से प्रे की एंड शी वेंट इनसाइड टू द क्लिनिक एंड शी सेड आप ना कोई मेडिसिन दे दो तो हम देखते हैं। फिर मम्मी को बोला कि नहीं हो ही नहीं सकता, एंड उसने बोला इंसिस्ट किया कि अच्छा चलो आप ना एक दिन के लिए जाने दो, दवाई दे के फिर देखते हैं। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी मम्मी को, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मम्मी घर नहीं जा सकती। एंड शी स्टार्ट चैंटिंग द ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साहिब, वो मंत्र जाप करने लग गई मेरी सिस्टर भी। और पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने उनके दिमाग में डाला मेरी सिस्टर ने एक मेडिसिन खानी छोड़ी हुई है, तो उसने बोला डॉक्टर को कि उसने मेडिसिन नहीं ले रही है तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाए। तो उन्होंने कहा वो उसका कोई मैटर नहीं है, उसकी हाई देखो, शुगर थायराइड देखो, आप अपनी मम्मी को नहीं लेके जा सकते हो। एंड वी वर लाइक ओके फिर एडमिट कराएंगे क्या करेंगे। आफ्टर 50 मिनट they were in the waiting area and doctor came, he said oh you know what, I just give her one other medicine, अगर वो कर जाएगी तो आप इनको घर पे ले जाओ और इनको वापस चेक करवाने लेके आना, ब्लड टेस्ट करा के, अगर वो वर्क कर जाएगी देन शी बी ओके। चलो ठीक है। एंड मेरी सिस्टर लॉ सिर्फ गुरुजी का मंत्र चैंट कर रही थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सहस्त्र। आप मेरे कल देखिए विद इन अ डे 19 को माई सिस्टर वाज एट गुरुजी सत्संग with doctor's permission and her sugar level was more than 700 and it was a miracle। and उसने वो सत्संग हमारे घर के उसमें भी शेयर किया, but डॉक्टर डिड टेल हर दैट कि आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है, आप खा नहीं सकते हैं कुछ नहीं, मेडिसिन पे रहना है, जो आपको मैं करूँगा पर आपको वही खाना है। पर गुरुजी का मिरेकल्स देखिए आपको कि एक दिन में इतनी शुगर डाउन लाना, इट्स ऑल्सो नॉट गुड। और आप वॉक कर रहे हैं, गुरुजी का सत्संग टंग कर रहे हैं, उनका प्रसाद खा रहे हैं थोड़ा बहुत, इट्स नॉट अ मिरेकल और व्हाट एल्स। गुरुजी हिमसेल्फ वाज देयर टू हेल्प हर। और मेरे पास सत्संग तो इतने हैं कि इफ आई स्टार्ट आई डोंट, मे बी सबके पास होंगे, देयर इज़ लाइक यू नो, आप बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे, मिरेकल्स ख़त्म नहीं होंगे गुरुजी के। बस यही है गुरुजी सब पे अपनी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, यू नो, दैट्स इट, व्हाट एल्स आई से। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए। अब संगत जी हम लंगर प्रसाद करेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है, द ईयर इज़ टर्निंग। ऑन न्यू ईयर्स ईव there would be a special satsang. The satsang would start at 7:30 p.m. and would continue till 9. It will be followed by langar prasad and performances. How they would be organized would be informed on the same day. And after the performances, the dance floor would be open for the entire Sangat. At 11:55, we will all sit down and do the mantra jap and usher in the new year with the mantra jap with Guruji. On New Year's Day, that is on the 1st, is Wednesday,
We would have a special New Year's Amrit Vela Satsang at 3:45 a.m. and a special afternoon Satsang which will be at 1 p.m. It will be followed by Aarti, and there would be live stalls outdoors, and langar on that day would be to go in boxes. Also, there's a little information. As Guruji makes his presence felt, and जैसा आंटी ने बोला कि डॉक्टर की मेडिसिन भी तब असर की जब गुरुजी चाहते थे, वो आपके लिए ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं गुरुजी खुद ही. एंड दैट इज़ व्हाट ही हैज़ डन थ्रू द टेम्पल. एक पायलट हैं संगत में who is ready to offer airlift facilities for patients. So in case you are in an emergency and you need to be airlifted, please call Sanjeev uncle in the temple and he'll help you with this. So this is a huge seva that is being done through the temple. So Guruji makes facilities available to us, and that facility is available to us. So anyone, anytime you feel someone you know and who needs airlifting, please contact Sanjeev uncle. Also, it has been noticed that this is a cybersecurity concern, that there are WhatsApp groups. Sometimes fake WhatsApp groups are created and people try to get in touch with you asking for your information and details. Kindly note that there are no new WhatsApp groups being created. If there is any, the temple will be informing you during the satsangs. Any message that you receive which has not been provided in the temple, do not accept those. And do not give away your information. Also, if you do receive such messages, inform them to Sanjeev uncle. Uski information temple में ज़रूर दीजिए, so that we can alert everyone not to accept any such fake accounts. डलस से संगत आई है कोई, वो प्लीज़ संजीव अंकल से मिलिए. I wonder who is it? Okay, yeah, please meet Sanjeev uncle outside. And now we'll have लंगर प्रसाद. जैसा कि आप जानते हैं कि लंगर प्रसाद करते हुए बिल्कुल साइलेंस में गुरुजी से कनेक्ट होते हुए लंगर करना है. जिन्हें भी बर्तन सेवा करनी है वो इस साइड पर बैठकर लंगर करेंगे. बाकी सब जैसा सेवादार आपको बताएंगे यहाँ बैठकर लंगर कीजिएगा. और इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त होता है. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.